Good morning to all. Myself Priyanka from BSc Chemistry Honours second year. Today I would like to introduce you about aldehydes, preparation of benzaldehydes, and after this we will discuss about uses of benzaldehydes. So let's start the discussion. So what are aldehydes? For knowing this, we should have learnt about carbonyl compounds. Carbonyl compounds are those species which contains carbonyl group, that is C double bond O group in their structure, that are called carbonyl compounds. For example, aldehydes, ketones, carboxylic group, acids, acid halides, acid anhydrides, esters and also acid amides. Then what are aldehydes? The species in which at least one H atom is attached to that of carbonyl group, that is CHO group, is present in their structure. For example, we can see here ethanol. Then what are ketones? The species in which no H atom is attached on carbonyl group, that is alkyl or aryl group is attached to carbonyl group in their structure. For example, we can see here propane 2-one. Then we will discuss about types of aldehydes. First type of aldehyde we will see up here, aliphatic aldehydes, the species in which CHO group is present on alkyl group. The aldehydes or ketones which are formed by the replacement of one or more H atoms from the aliphatic hydrocarbon by the CHO group are called aliphatic aldehydes. Second in this series is aromatic aldehydes. The species in which CHO group is attached on benzene ring are called aromatic aldehydes. The aldehydes which are formed by the replacement of one or more H atoms from benzene ring by the CHO group are called aromatic aldehydes. Then the second type of aldehydes is symmetrical or simple aldehydes, that is the species in which same groups are present around CHO or COR group are called symmetrical aldehydes or ketones. For example, we can see here ethanol, methanol, propane 2-one. Second type in this series is mixed or unsymmetrical aldehydes, the species in which different types groups are present around CHO group are called unsymmetrical aldehydes. We can see here the example as ethanol and benzaldehyde, benzophenone, etc. Then we will discuss about preparation of benzaldehydes. We can see here the number of reactions. We will discuss them one by one. So we'll discuss about preparation of benzaldehydes. The reactions are here. From methanol, phenyl MgBr get react with this. O gets partially negative charged and this carbon gets partially positively charged. So this phenyl is सबसे पहले हम इथेनल मिथेनल की रिएक्शन करेंगे फिनाइल एमजीबीआर के साथ, जिससे कि जो कार्बन है वो पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो पार्शली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जो फिनाइल एमजीबीआर है फिर वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिससे इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जिससे बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। फिर हम बेंजाइल अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कराएंगे, जिससे ये H2 निकल जाएगा इसमें से और फिर हमारे पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। इसी में हम सेकेंड रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बेंजीन लेंगे, जिसकी हम गेटरमैन सिंथेसिस हम इस रिएक्शन को बोलते हैं। इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और AlCl3 और CuCl के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा।
इस रिएक्शन को हम गेटरमैन सिंथेसिस भी बोलते हैं। अब इसी सीरीज में जो हमारी थर्ड रिएक्शन है वो है बेंजोनाइट्राइल की। जब हम स्टीफन रिडक्शन कराएंगे, दैट इज मतलब SN in the presence of HCl, then heat the compound। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीफन्स रिडक्शन, जिससे कि हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। फिर हम जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये कंपाउंड बनेगा, जिससे जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक कार्बन के ऊपर एक से ज़्यादा OH होते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है, फिर वो वाटर लूज करके ये बेंजल्डिहाइड बना लेगा। इसी में हमारी जो फोर्थ रिएक्शन है वो है हम बेंजाइल अमीन की रिएक्शन कराएंगे HNO2 के साथ, जिससे कि एक N2 निकल जाएगा और वाटर लूज हो जाएगा। जो है HNO2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। फिर हम इससे ये एक H निकल जाएगा और N2 निकल जाएगा और ये और बच जाएगा, जिससे कि बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। फिर हम जब उसकी डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। इसी सीरीज में जो हमारी फिफ्थ रिएक्शन है वो हम देख सकते हैं, यहाँ पे बेंजाइल अमाइड है। बेंजाइल अमाइड की जब हम रिडक्शन कराएंगे LiAlH4 के साथ और जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारा बेंजाइल अमीन बन जाएगा, जिससे कि हम आगे फर्दर इसको ऐसे ही प्रोसेस कर सकते हैं। HNO2 के साथ हम जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा और जब हम इसकी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराएंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। इसी सीरीज में हमारी सिक्स्थ रिएक्शन है बेंजाइल क्लोराइड को जब हम एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा। और जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि बेंजाइल अल्कोहल की जब हम डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराएंगे तो इससे हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। इसी में जब हम टोल्विन की रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो हमें मिलेगा बेंजाइल क्लोराइड, जिसके फिर हम आगे इसको फर्दर ऐसे ही प्रोसेस कर सकते हैं। एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करा के हमें बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा, जिससे उसके बाद में हम जब इसकी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराएंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। और हम टोल्विन की दूसरी रिएक्शन से भी बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, जिसको हम इटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं। जब हम टोल्विन को CrO2Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसे ही जब हम बेंजीन को CH3Cl और AlCl3 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमें टोल्विन मिल जाएगा। टोल्विन से हम जो कि उसकी दो रिएक्शन ऐसी हमने अभी डिस्कस करी हैं कि टोल्विन के साथ जब हम इटार्ड रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा एक ही स्टेप में। और जब हम टोल्विन को Cl2 से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो हमें बेंजाइल क्लोराइड मिल जाएगा। फिर जब हम उसकी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा, जिसकी हम फर्दर डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे तो हमें बेंजाइल एल्डिहाइड मिल जाएगा। इसी में जो हमारी नाइन्थ रिएक्शन है वो है कि हम जब बेंजाइल क्लोराइड को Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें बेंजल डाइक्लोराइड मिल जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है तो हम इसको बोलते हैं बेंजाइल। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो Cl लगे हुए हैं तो हम इसको इस ग्रुप के साथ बोलते हैं बेंजल। दैट इज बेंजल डाइक्लोराइड हम इसको बोलेंगे, ना कि बेंजाइल डाइक्लोराइड। फिर जब हम इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराएंगे तो हमें एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जो एक कार्बन के ऊपर जब एक से ज़्यादा OH ग्रुप लग जाते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है और फिर वो वाटर लूज करके
बेंजल्डिहाइड बना लेगा। इसी सीरीज में हमारी 10th रिएक्शन है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी सीरीज में जब हम देखते हैं कि जब हम बेंजोइल क्लोराइड को पैलेडियम BaSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ S, जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। इसी रिएक्शन को हम रोज़नमंड रिडक्शन भी कहते हैं। ये जो हमने अभी रिएक्शन कराई है, दैट इज फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4S। इस रिएक्शन को हम रोज़नमंड रिडक्शन भी कहते हैं। इसी सीरीज में हमारी 11th रिएक्शन है, जब हम हाइड्रोजन साइनाइड को फिनाइल MgBr के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो ये जो नाइट्रोजन है वो पार्शली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और जो कार्बन है वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिससे कि ये जो फिनाइल ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। फिर जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें एक ऐसा ही कंपाउंड मिलेगा जिसमें कार्बन के ऊपर एक से ज़्यादा OH ग्रुप है। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब एक कार्बन के ऊपर एक से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं तो वो वाटर लूज करके एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, जिससे हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। After discussing the preparation of benzaldehyde, we will discuss about reactions of benzaldehyde. So the first reaction in this series is benzoin condensation. बेंजोइन कंडेंसेशन में हम 2 मोल्स लेंगे बेंजल्डिहाइड के, जो कि फर्दर रिएक्ट करेंगे KCN के साथ, विच इज़ एन आयनिक कंपाउंड which breaks out into K positive and Cn negative ions, and resulting product of this reaction we can see here. सबसे पहले इसमें जो बेंजल्डिहाइड है उसमें जो O ग्रुप है, CO ग्रुप है, ये जो बॉन्ड है ये O की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे O के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और C के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो Cn नेगेटिव है वो फिर इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। फिर इसके बाद जो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है वो इस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करेगा और जो H एटम है वो H पॉजिटिव निकल जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद इसकी रीअरेंजमेंट होगी। फिर हम इसमें जो दूसरा मोल हमने लेना है बेंजल्डिहाइड वो इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये जो Cn है ये Cn नेगेटिव बन के निकल जाएगा और हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बाद इसी सीरीज़ में हमारी दूसरी रिएक्शन है जिसका नाम है पर्किन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम जो बेंजल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिनेमिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसिटेट, जैसा कि हम यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं। इसके बाद हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें 1 मोल बेंजल्डिहाइड है जो कि इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करके ये फॉलोइंग कंपाउंड बना लेगा, जिसकी जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। फिर इसमें जो एसिटेट आयन है वो इस H के साथ में रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बना लेंगे, जिससे हमें सिनेमिक एसिड मिल जाएगा। इसके बाद इसी सीरीज़ में हमारी थर्ड रिएक्शन है नोवेंजल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन में जो हमारा बेंजल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज सिनेमिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ मेलोनिक एस्टर। ये सेम पर्किन रिएक्शन के जैसे ही है, पर नोवेंजल कंडेंसेशन में और पर्किन रिएक्शन में डिफरेंस यही होता है कि इसमें जो हम एडिशनल कंपाउंड ले रहे हैं वो मेलोनिक एस्टर है और पर्किन रिएक्शन में हमने अभी देखा था कि वो एसिटिक एनहाइड्राइड है।
चलिए अब हम इस रिएक्शन को शुरू करते हैं। इस रिएक्शन में जो बेंजल्डिहाइड है वो जब मैलोनिक एस्टर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें फॉलोइंग प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि फेवरेबल कंपाउंड दैट इज सिनेमिक एसिड। चलिए अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि जो पर्किन रिएक्शन में हमने इस मैलोनिक एस्टर की जगह पे हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया था। अब इस रिएक्शन में हम इस एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड को जब रिएक्ट कराएंगे तो हमें सिनेमिक एसिड मिलेगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। जो इस कार्बन के ऊपर जो ये लोन पेयर ये नेगेटिव चार्ज है वो इस पार्शली पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिससे हमें ये फॉलोइंग प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर जब हम इस प्रोडक्ट की एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर जब हम इसको हीट करेंगे तो CO2 निकल जाएगा। CO2 निकलने के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिससे ये जो बॉन्ड है ये OH की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जो ये H बॉन्ड है ये इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हमें सिनेमिक एसिड मिल जाएगा। उसके बाद रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड में नेक्स्ट रिएक्शन है रिफॉर्मेट्सकाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो अल्फा हेलो एस्टर होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में। ये रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन की प्रेजेंस में होती है विद द फॉलोड द जिंक बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। चलिए अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं कि कैसे हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इस रिएक्शन में जब हम इथेनॉल को अल्फा हेलो एस्टर के साथ रिएक्ट कराएंगे और इसमें जो हमारा जिसकी प्रेजेंस में हमें करानी है वो है जिंक डस्ट, और हम इसको जब हीट करेंगे तो हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। चलिए अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हम इसमें जब इथेनॉल को इस एस्टर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसमें ये OZNBr जो लगा हुआ है ऊपर हम देख सकते हैं। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जो ZNBr है वो OH के साथ कंबाइन होकर निकल जाएगा और यहाँ पे इसकी जगह पे H लग जाएगा, जो कि OH ग्रुप बन जाएगा। फिर हमें ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड के बाद जो हम रिएक्शन कर रहे हैं बेंजल्डिहाइड की, उसी सीरीज़ में हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है मैनेज बेस रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो मीथेनॉल है उसको जब हम कंडेंस करेंगे विद 2 डिग्री अमीन के साथ तो हमें 1 डिग्री या 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन मिल जाएंगे विच हैव एसिडिक अल्फा H एटम। हमारी जो रिएक्शन है मैनेज बेस रिएक्शन, इसमें हम जो मीथेनॉल है वो उसको कंडेंस कराएंगे किसके साथ, या तो 2 डिग्री अमीन के साथ, और उसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 डिग्री या 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन या फिर कोई भी कीटोन विच हैव एसिडिक अल्फा H एटम। चलिए अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं। ये जो हमने यहाँ पे कीटोन लिया है और ये मीथेनॉल एंड दिस इज 2 डिग्री अमीन। जिसको जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे मैनेज बेस। इसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन से इस रिएक्शन का जो नाम है वो मैनेज बेस रिएक्शन रखा गया है। चलिए अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। इसमें जो मीथेनॉल है तो जो ये CO ग्रुप है, जैसा कि हम पहले भी देखते आ रहे हैं कि जो ये डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जो H पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा,
जिससे ये OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे जो हमने 2 डिग्री अमीन लिया है उसमें जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद जो ये H एटम है ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये OH निकल जाएगा। तो ये OH और ये H मिलके वाटर बना लेंगे और ये वाटर लूज करके ये कंपाउंड बना लेंगे, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो रीअरेंज होके कार्बन के ऊपर चला जाएगा, जिससे ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। फिर जब हम फर्दर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम मैनेज बेस कहते हैं। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है जिसका नाम मैनेज बेस है, इसी के ऊपर जो हमारी रिएक्शन का नाम है दैट इज़ मैनेज बेस रिएक्शन। इसके बाद इसी सीरीज़ में हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है विटिग रिएक्शन। तो विटिग रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें जो एल्डिहाइड या कीटोन है उनको हम कन्वर्ट करते हैं एल्कीन्स में, और इसकी जो रिएक्शन है वो होती है फॉस्फोरस यील्ड्स के प्रेजेंस में। चलिए अब हम विटिग रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसको स्टडी करते हैं। इसमें जो ये फॉस्फोरस के साथ में 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं और ये डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन से अटैच है, जो कि ये डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जब हम इसकी रिएक्शन किसी कीटोन के साथ कराएंगे तो ये O के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो जो ये इस कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिवली कार्बन के ऊपर इससे अटैच हो जाएगा, और जो ये O है जिसके ऊपर हमने अभी बताया कि इस O के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, वो इस फॉस्फोरस के पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होके एक बॉन्ड बना लेगा। फिर जिससे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको हम बिटेन भी बोलते हैं। फिर इसमें ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा जिससे जो हमारा ये CO के बीच का जो बॉन्ड है ये इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा और ये एल्कीन बना लेंगे, और जो ये कार्बन और फॉस्फोरस के बीच का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ये एक फॉस्फोरस हैलाइड्स दोबारा से बन जाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो फॉस्फोरस हैलाइड्स हैं वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जो फॉस्फोरस हैलाइड्स हैं वो ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन की जब हम रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल लिथियम, तो हमें जो हमारा फेवरेबल प्रोडक्ट है दैट इज़ फॉस्फोरस हैलाइड्स मिल जाते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है और ये एक एल्काइल हैलाइड है। इसमें जो ये Cl है ये इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर जो फॉस्फोरस के लोन पेयर्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, जिससे इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जो फॉस्फोरस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने अपने लोन पेयर से कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे अल्काइल लिथियम के साथ तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स में क्या होता है, फॉस्फोरस हैलाइड्स में एक जो फॉस्फोरस है वो कार्बन के साथ में अटैच होता है, जिस कार्बन के साथ में 2 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, और फॉस्फोरस के जो 3 बॉन्ड जो बच जाते हैं वो फिनाइल के साथ में बनाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते After these reactions, we will discuss about uses of benzaldehydes. So first use of benzaldehyde, we can see here that it is used in the manufacture of number of compounds, कि हम benzaldehyde को
हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चर में. Then the second use of benzaldehydes is it is used for the preparation of dyes like malachite green. Its third use is it is used as a flavoring agent in the perfume industry. I hope that I am able to put my words correctly. Thank you.